Hello, and welcome everyone to the third quarterfinal. We had two insane quarterfinals already, and we already have four semi-finalists out of those eight: Anirban Das Gupta, Shantanu Anam, Biswa Kalyan Rath, and Devaya Bopanna. And we have a fresh set of four new quarterfinalists, out of which two will qualify for the semis. On that note, time to introduce all the four contestants and get it going. The first contestant is the only debutant in this edition. I just realized he's making his debut on Quizzing with the Comedians, and in our quest of making Quizzing with the Comedians go way beyond stand-up comedians and comedians as such, and involving people from other art form, he's one of the most amazing actors we know. In fact, I just realized just one of the four contestants in this quarterfinal is a stand-up comedian per se, which is a great reflection of how far we have come from where we started. A lot of people in the comments are saying I'm calling him just so he can return the 6 lakhs he still owes me. On that note, calling Vicky Maheshwari, aka Sunny Hinduja, to this quarterfinal. Sunny bhai, हेलो वरुण. कैसे थैंक यू आप? सो मच. बहुत लोग कह रहे हैं मैंने टिकटेड शो सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पैसे आपने रख लिए और अब वापस नहीं कर रहे हो. इतना स्वीट तो हूँ मैं आपके पैसों के लिए. मैंने कहा चलो आपके 6 लाख आ जाए, उसके लिए हम इस पे आ जाते हैं. सनी भाई बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप पहली बार यहाँ आए हो खुदिंग विद द कॉमेडियंस में. मजा आएगा. घर की बात है. सारे कंटेस्टेंट आपको जानते ही हैं. मैंने तो पूरा ही अपना क्रिकेट ग्रुप इस क्वार्टर फाइनल के लिए इकट्ठा कर लिया. साथ में क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा क्विज भी कर लेंगे. बट थैंक यू सो मच वरुण. आई एम रियली एक्साइटेड एंड थैंक्स फॉर चूजिंग मी. थैंक यू. Yes. Thank you, Sunny bhai. On that note, I'm calling someone who has been here earlier. He was a semi-finalist earlier. Fantastic writer on the back of a great cred ad that the whole India is watching right now. Give it up for Vishal Dayama. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते विशाल जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया. थैंक्स फॉर हैविंग मी. विशाल पे बहुत प्रेशर है क्योंकि विशाल के वर्स्ट फ्रेंड देवैया बोपन्ना ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड में. या और अगर इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया तो देवैया अगले 40 साल तक इनकी बेइज्जती करने वाला है. तो हाँ, वो हेकलिंग बहुत होगी वो. एक्टिंग होगी. Talking about friends, calling one of my closest friends and not just a friend, next semi-finalist of sports edition, एक semi-finalist of movies edition, and he's back in another themed edition. Fantastic writer, cricketer, person. Give it up for Vishwas Sharma. थैंक यू भाई. थैंक यू भाई. अगर विकी माहेश्वरी है तो फिर रॉनी बाटा को बुलाना ही पड़ेगा. गिव इट अप फॉर जाकिर खान. नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे वाह, क्या बढ़िया फ्रेम और और शर्ट. मतलब उफ. I just wanted to break my image about this black t-shirt is too much. सही बात है. All the best to Sunny, Vishal, Vishwas, and Zakir. Okay, first question is to Sunny. Starting with cricket. Okay, this Indian bowler is known for being an economical bowler. He bowled a record 21.5 consecutive overs, which means 131 balls without conceding a run against England in Chennai on January 12th, 1964. He gave only 5 runs in that innings, finishing with figures of 32 overs, 27 maidens, 5 runs, and 0 wickets, and has the all-time best economy rate of 0.15. He ended his test career with an economy rate of 1.67. Which Indian bowler with this insane economy rate are we talking about? अरे बाप रे. 1964. Mm-hmm. Uh, mm. 1964 में तो वो 82 में थे. मतलब ऐसा थोड़ा टाइम ले सकते हैं कि आराम से टाइम लीजिए, कोई बात नहीं. आराम से. He ended his test career with an economy rate of 1.67. Mm-hmm. यार कोई एक याद है मुझे उस टाइम पे. I'll take a wild guess. फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा है मुझे. कोई बात नहीं, सेकंड नेम चलेगा.
एक थे नदकर्णी, वो खतरनाक करते थे बॉलिंग, लेकिन आई एम नॉट श्योर वो टाइम पे नदकर्णी, आई टेक अ गेस. Okay, नदकर्णी. yeah, that is correct. 10 points to Sunny. Oh, Bapu Nadkarni. Bapu Nadkarni recently died and yeah, got ये world recently इनका यहाँ, yes, ये unbelievable economy rate of 1.67 and 131 balls without conceding a runs. Great stuff. Wow, great start I to the think quiz. it was a guess, yeah. Thank you. Yes, always. इसलिए मैं हमेशा encourage करता हूँ कि guess ले लीजिए. Awesome. Bapu Nadkarni is correct. बापू नदकर्णी, correct. Thank you. Okay, moving to Vishal Dayama now. Vishal, this is your direct. Industrialist Shahu Shanti Prasad Jain of the Sahu Jain family conceived an idea in May 1961 to start a scheme commanding national prestige and of international standard. Jain, along with Kaka Kalelkar, Harivansh Rai Bachchan, Ramdhari Singh Dinkar, Janendra Kumar, Jagdish Chandra Mathur, Prabhakar Machwe, Akshay Kumar Jain, and Lakshmi Chandra Jain, presented the initial draft to the then President of India, Rajendra Prasad, who had shown interest in the scheme's implementation. The idea was also discussed at the 1962 annual sessions of the All India Gujarati Sahitya Parishad and the Bharatiya Bhasha Parishad. So, ये सब के बाद, what resulted in after all this that started in 1965? Is it Dada Saheb Phalke? Not Dada Saheb Phalke Awards. Going to Vishwas. हिंदी को ऐसा एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, ऐसा कुछ. नेशनल लैंग्वेज नहीं. जाकिर. क्या ये टीचर्स डे के बारे में? नहीं, टीचर्स डे नहीं है. सनी. मुझे बिल्कुल क्लू नहीं है इसका. नो आइडिया. पास. नो आइडिया. ओके. हाँ, बोलिए. हिंदी 1965 हाँ, हिंदी का भी वो नहीं है. हाँ, नहीं, सॉरी. ओके, स्टार्ट. एक हिंट देंगे और 5 पॉइंट का बना देंगे. स्टार्टिंग विद विशाल. सो विशाल का गेस बहुत अच्छा था कि हमको अवार्ड्स के ट्रैक में सोचना है. ठीक है, अवार्ड इज अ हिंट. विल स्टार्ट विद विशाल व्हेनेवर विशाल इज रेडी. साहित्य अकादमी. नॉट साहित्य अकादमी अवार्ड. विश्वास. नेशनल अवार्ड्स. हाँ, नेशनल अवार्ड्स. नेशनल अवार्ड्स नहीं. साकिर. रीजनल लैंग्वेजेस को करिकुलम में इंक्लूड करना. नहीं. सनी. स्कीम अवार्ड्स जैसा लग रहा है मुझे, पता नहीं कोई. I don't know, some international awards I'm feeling, but I don't know exactly actually. हरिवंश राय बच्चन और दिनकर वगैरह से. साहित्य अकादमी वाज अ गुड गेस, बट द एक्चुअल आंसर इज ज्ञानपीठ अवार्ड. ज्ञानपीठ अवार्ड. अरे Oh. किसी को साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं बोलते क्या? काफी नहीं, अलग हैं दोनों. Okay, no one gets any points. We come back to Vishal now because sorry, this was Vishal's direct, so next will be Vishwas's direct. Okay, but दो लोग हैं आपके स्क्रीन पे. You need to connect them exhaustive. कोई इन दोनों में एक कनेक्ट है जो कि exhaustive है, मतलब इसके अलावा और कहीं नहीं आता है वो फंडा. And you hint that I'm giving all of you is that think of things that are named after them. So basically think of things that are named after them and what is so unique about it. कि एग्जॉस्टिव है इन द सेंस, एग्जॉस्टिव आपको पता है कि ये इस लिस्ट में और कोई नहीं है, ये दो ही हैं. ऐसा क्या हो सकता है? और आपको ऐसी चीजें सोचनी है जो इनके नाम पे रखी गई. यार दूसरी तो पिक्चर में पहचानता भी नहीं. तो एयरपोर्ट. एयरपोर्ट्स और इम्प्रूव करेंगे. वो एयरपोर्ट्स तो बहुत है इंडिया में, तो एग्जॉस्टिव कैसे? एक तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट. दूसरा सोचता हूँ उनको. हाँ. यार दो जगह जाना, तीसरी जगह तो मैं जाता ही नहीं एयरपोर्ट से, तो मुझे पता भी नहीं. तो 5-7 टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है. ठीक है. ओके, आई विल गेट बैक टू यू. जाकिर. देवी अहिल्या ओहो. इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ओके, तो ये दोनों में ऐसा क्या यूनिक है जो कि सिर्फ ये दो ही हैं? मतलब मैंने बाकी एयरपोर्ट क्यों नहीं डाले, फॉर एग्जांपल, ये पूछना चाह रहा हूँ.
महिला स्टेट है. महिला is also okay. I'll give it to you. Actually, इंडिया में 2 ही एयरपोर्ट है जो औरतों के नाम पे. There are only 2 airports in India which are named after women. One is Indira Gandhi, New Delhi Airport, and Devi Ahimsa. So that is the exhaustive connect that I was looking for. कि ऐसा यूनिक क्या है इन 2 एयरपोर्ट्स पे, इंदौर एंड दिल्ली, जो कि आफ्टर अ फीमेल पिक. So I'll have to give part points to विश्वास also क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट बोला और जाकिर ने एग्जैक्ट आंसर दिया which is अहिल्या बाई होलकर and Indira Gandhi. So 3 and 7 I think Nice one. distribution. 3 to Vishwas and 7 to Zakir. Okay. Okay. Next direct will be to Sunny Bhai because Zakir got bulk of the points on this. Okay. Sebastian D'Souza was the only photographer to take pictures of Dash. Okay. And it was this image along with his testimony that played a crucial role in the trial. This image of a man dominated newspapers across the world with accessories on his wrist, a black short, a backpack holding something dangerous on his right hand. The close shot made a chilling picture that shook India and the world that day. Which famous photograph is being talked about here? हम किसी famous अपना कसाब का फोटो. Yes, perfect answer. It is Ajmal Kasab. 10 points to Sunny. It is Ajmal Kasab. Kasab, famous photo at CST station in Bombay. Sunny got Ajmal Kasab, which means the next question will be to Vishal. Vishal, look at this bottle of water on your screen. Okay, this was launched in 2009. And I've given you 2 pictures. One is the bottle and one is the nutritional facts of the water in that bottle. I want you to put funda. When I say put funda, I mean basically क्या है ये फंडा, क्यों है ये बॉटल, क्या है, क्या स्टोरी है वगैरह, जो भी आप बोल सकते हैं इस बारे में. तो ध्यान से बॉटल देखिए और जो भी हिंट्स इमेज में है, विजुअल क्वेश्चन है, और मुझे बताइए. So this is a total guess. Mm-hmm. So was this bottle launched as an awareness campaign कि भाई ये कांच का बॉटल है, reusable है, and percentage fats वगैरह सब लिखा हुआ है, but minus 400%, like if you use this bottle then आप methane इतना बचा रहे हो, carbon tetrachloride इतना बचा रहे हो, chloroform इतना बचा रहे हो. No. विश्वास. मैं तो इस उम्मीद में बैठा था कि विशाल भाई बोल दो जवाब और मैं बच जाऊंगा. पास, कुछ आइडिया नहीं है. Okay, Zakir. Is it like a campaign against no plastic? No. The bottle of water, which was launched in 2009. Look at both pictures. Oh. क्या both pictures? हाँ, और आपको बता दें क्या क्या स्टोरी है, क्यों ये क्या बात हो रही है इस पानी बॉटल की. The bottle of water was launched. Look at both of the pictures and put funda. दूसरी पिक्चर मतलब ये फैक्ट्स जो है वो. हाँ, करेक्ट. एक में तो पानी बॉटल का फोटो है और एक में उसका फैक्ट, न्यूट्रिशन. Bupal amount of total fat 0. The percentage values are based on 2000 calorie diet, so your values may change depending on your calorie needs. यार ये वाला तो बताओ यार सन्नी भाई, आपका क्वेश्चन है. अपने लग रहा है एमपी का कुछ है क्या? नहीं, इसमें कैलोरी वैलोरी है ना यार. अच्छा वैसे क्या? एमपी वाला तो निकाला ना अभी मैंने. एक मिनट. हाँ, मैं थोड़ा सा. The bottle of water was launched in 2009. यार प्रेशर है ना यार, यूपीएससी की तैयारी वारी की हुई है पूरे तरीके से, तो आना चाहिए. Bhupal. Carbon chloroform. The percentage values 2000 calories or values may change depending on the. वो Bhupal टाइप है क्या कुछ? हाँ? क्या? मतलब this bottle of water, look at the boat में put the funda. फंडा मतलब क्या बताना है मुझे, मतलब जो भी आप इसके बारे में बोल सकते हैं, इस ब्रांड के बारे में, इस पानी बॉटल के बारे में, और न्यूट्रिशनल फैक्ट, मतलब बेसिकली आपको कुछ चीजें दी हुई हैं.
क्या लगता है Oh damn. क्या है? मतलब ये कुछ ऐसा सैड जोक टाइप तो नहीं है? भोपाल मतलब भोपाल, सॉरी। आप इन और इन दोनों का कनेक्शन चाहिए बेसिकली। हाँ मतलब ये जो न्यूट्रिशनल फैक्ट ये जैसे रहता है ना हर बॉटल में, जैसे पेप्सी, कोक, एक्वाफिना सब में, तो इस बॉटल के पीछे न्यूट्रिशनल फैक्ट ये लगा हुआ है। ओके और ये ब्रांड है पानी का और 2009 में लॉन्च हुआ था। ओके तो बस ये जानना है जो भी आप इसके बारे में बोल सकते हैं। जैसे किसी ने बोला कि नो प्लास्टिक के लिए ये लॉन्च हुआ था, और किसी ने बोला कि पानी अगर आप ये वाला यूज करेंगे तो आप ये सब बचता है, मीथेन वगैरह इस टाइप, मतलब तो जो भी आपको लगता है कि ये क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी का कुछ सीन है इससे जो जिससे ये आया है ऐसा कुछ? आई डोंट नो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। ओके, और कुछ ऐड करना चाहते हैं? पता नहीं, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा कुछ था क्या जो ट्रेजेडी में थे वो उनके लिए हेल्पफुल हो जिनको गैस वैस चली गई हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला। आई डोंट नो, जस्ट अ वाइल्ड थॉट। ओके सो या आई विल गिव अ लॉट मतलब ऑफ भोपाल का पानी टाइप ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ बोलते हो, पता नहीं मुझे। एक्चुअली आई विल गिव यू फुल 10 पॉइंट बिकॉज़ और कोई तो इसके आसपास भी नहीं गया था, सो आई विल गिव यू फुल 10 पॉइंट्स। एक्चुअली इट इज वाटर सोर्स फ्रॉम विलेजेस अराउंड यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल। सो अगर आप ये देखें, भोपाल इज एक्चुअली अ पन ऑन भोपाल। और जो वो ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ की पानी में अभी तक 25 साल हो गए थे, 84 में हुआ, तो 2009 में इन्होंने लॉन्च किया था। और वहाँ का ग्राउंड वाटर लेके ये दिखाना चाहते थे कि देखिए ये पानी कितना खराब है, विथ लाइक जो आपने कंटेंट देखा। सो दिस इज एक्टिविस्ट वगैरह ने ये पानी लॉन्च किया था भोपाल क्या फ्रॉम बात। अराउंड यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। सो 10 पॉइंट्स टू सनी because आई सनी वुड लाइक टू थैंक जाकिर भाई। 10 पॉइंट्स टू सनी। भोपाल इज बेसिकली भोपाल वर्ड पे है, एंड दिस इज ग्राउंड वाटर वहाँ का जो कि दिखाया हुआ है। मुझे मिल रहे हैं तुक्के में, बट थैंक यू। No, full 10 points. Well deserved. This is Sunny got 10 points, which means the next direct will again be to Vishal. Vishal, we are talking about the world's first partition museum located in India. The museum aims to become the central repository of stories, materials, and documents related to the post-partition riots that followed the division of British India into two independent countries, India and Pakistan. The museum was inaugurated on 25th August 2017. All I want you to tell me is which Indian city is this museum located? Amritsar. Sorry? Amritsar. Yeah, perfect answer. 10 points. It is Amritsar. Amritsar, one of the cities most affected by partition. Actually went to this partition museum last year. And मतलब मैं तो बहुत highly recommend करता हूँ. It's one of the best museums in India. Okay. Vishal gets 10 points. Next direct will be to Vishwas. Vishwas, I have given you 3 images on your screen. Connect these images with a brand name. Okay. एक वर्ड का आंसर चाहिए, एक ब्रांड का नाम चाहिए, और इन तीनों इमेजेस पे क्लूज हैं उस ब्रांड के लिए। इंडियन ऑफ कोर्स, मतलब गोज विदाउट सेइंग। ये कौन सा फ्रूट है भाई? ये बता सकते हो क्या? ये फ्रूट नहीं। कौन सा है? ठीक है। अखरोट लग रहा है यार अखरोट इतने बड़े थोड़े होते हैं। तो छोटे ही लग रहे हैं यार स्क्रीन पे तो। अखरोट है कि पपीता है? सर मैंने खेल लिया क्विज अब। बहुत देर में बैठा हूँ चुप, ये मेरा लाइफ का मैक्सिमम चुप बैठा हूँ, ठीक है। I also want to address the fact that this is the lowest alphabetical order you could ever get. Oh yes, SVV Z.
चलो तुक्के लगाता हाँ। हूँ, रॉयल पाम कोर्ट। नहीं, जाकिर। ताज होटल्स। नो, नॉट ताज होटल। सनी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों रैंडम थॉट आ रहा है, वो आत्मंथन रिसोर्ट टाइप तो नहीं है कोई? नो। हम्म। पासिंग टू विशाल। पास। पास। ओके, 5 पॉइंट स्टार्टिंग विथ विश्वास। हिंट देना चाहूंगा। पहला हिंट ये है कि हाँ जी। 2004 में शुरू हुआ कोलाबा में। बॉम्बे बॉम्बे कोलाबा से शुरू हुआ है और अभी और भी जगहों पे है। और जो बीच वाला फोटो है वो उस ब्रांड का कलर स्कीम है। ओके। तो और राइट में जो है वो एक शेफ है, तो वो आपको एक डायरेक्शन देगा, राइट वाला फोटो शेफ के टूवर्ड्स। बीच वाला से आपको कलर स्कीम का थोड़ा सा ध्यान आएगा। और बॉम्बे बेस्ड ब्रांड, 2004 ब्रांड, नॉट मतलब बहुत पुराना भी नहीं, और वन वर्ड ब्रांड। तो इन हिंट्स पे एक राउंड करते हैं, विल सी। और पहले फोटो का क्या क्लू है? पहला का ये है कि साइंटिफिक नाम, जो ब्रांड का नाम एक्चुअली वहां से आता है। या हाँ तो सब जगह रखा है, नाम याद नहीं आ रहा। हवा में। इलाहाबाद से शुरू, अभी तो मतलब बहुत जगहों पे है, इसलिए मतलब इतना स्पेसिफिक तो कोलाबा नहीं है मतलब। बट शुरू साउथ बॉम्बे में हुआ, और ये जो शेफ हैं राइट में, इन्होंने एक्चुअली शुरू किया। शी इज उधर द रेस्टोरेंट है। घर पे तो फ्री गिफ्ट्स भी आए हुए हैं क्या? क्योंकि कलर तो देखा हुआ लग रहा है। कलर पक्का देखा होगा, नो डाउट। देखा हुआ तो लग रहा है मुझे भी सही में। कि विल स्टार्ट विद विश्वास, जब भी विश्वास रेडी होंगे। चलो पास यार, नहीं पता। पास। ओके, जाकिर। जोक से आ रहे हैं यार, नाम तो नहीं आ रहे। जाकिर भाई, जोक से आंसर हो गया था मेरा तो। वैसे दीदी ने मतलब फोटो शूट तो अच्छा करवाया था अपना। लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट बिहाइंड द फोटो शूट। स्माइल वाइल भी बढ़िया दिए। और ये एक लोग बोलते हैं ना ऐसे हाथ बांध देते, अपन लोग टाइट बांध देते, कैमरा पे बोलते हैं लूज रखिए आप हाथ। तो जब भी लोग ऐसे हाथ बांधे तो देख लेना कि उन्होंने लूज रखा हुआ, टाइट नहीं रखा हुआ। देखो उन्होंने भी कितना लूज रखा हुआ है, बढ़िया। शादी हो चुकी है, उनकी अंगूठी भी दिख रही है। ये सब मैंने ऑब्जर्व किया, इसमें से नाम तो नहीं। यार उस पे लिखा हुआ है क्या ब्रांड? हाँ मेरे को सर ये क्या, ये इंडिगो। नहीं, नॉट इंडिगो। सनी। दैट वाज अ गुड ट्राई। इंडिगो तो है नहीं ना अपने, क्या बोलते हैं, साउथ बॉम्बे में। यस। यार ये इतना बता दो मुझे, अखरोट है ना सर, वरुण भाई? नहीं नहीं, अखरोट नहीं। इतने बड़े तो नहीं होते, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो मैं तो छोटे ही लग रहे हैं। और पीते हैं। आपको केक केक यार केक सनी भाई यार, केक केक शॉप। में फर्क बताना पड़ेगा क्या अब? हैं? केक शॉप। हाँ, क्या सर? ब्रांड ब्रांड। क्या अखरोट में फर्क बताना पड़ेगा क्या अब आपको? हैं? सर मेरा स्क्रीन छोटा है सर। अच्छा। दीदी की अंगूठी भी नहीं दिख रही। हाँ। कोई केक शॉप है ना? इतना तो बता दो, मैं गेस मार दूंगा फिर। नहीं नहीं ऐसे नहीं नहीं है होता। केक शॉप? अच्छा, ये बता नहीं, नहीं बता सकते। नहीं रहा। अच्छा, बता नहीं दो। हम्म। ब्राउनीज, सॉरी, थियोब्रोमा। That is correct. 5 points to Sunny. It is Theobroma. कितने पॉइंट हो गए यार, छोड़ दो थोड़े यार, आप तो जीत चुके ऑलरेडी। That the image on the left was cocoa tree, which is वो जो, Theobroma, हाँ, color scheme of Theobroma, and right was Canaz Messman, who is the founder of Theobroma. Great, great crack again by Sunny. मेरे को बस वो पिंक कलर दिखा वहां पे बस। वाह बढ़िया। Hmm. बस हम बाकी पता नहीं पिंक था। कलर ढूंढ रहे हैं सन्नी भाई। बता नहीं रहा है वो पिंक कलर क्या है। Okay, next direct to बाकी ये नहीं पता थी ट्री कौन सी है, वो नहीं पता थी। कोई बात नहीं। next direct to Vishal. This is a story when the Dutch attempted to quell Indonesian independence on 21st July 1947. President Sukarno ordered Sharar, the former Prime Minister of Indonesia, to leave the country
to attend the first Inter-Asia Conference organized by Nehru in July 1947. Then, now comes the part where we are talking about a certain person. This adventurous and expert pilot entered Indonesian airspace, landed on an improvised airstrip near Jakarta, using leftover fuel from abandoned Japanese military dumps. He took off with prominent rebels, including Sharar, Ahmad Sukarno. For his participation in Indonesian freedom struggle, he was awarded the Bhumiputra, which is the highest Indonesian award, rarely granted to a foreigner. Who was he? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम एक ऐसे इंसान की बात करें जो इंडोनेशियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है वो भारतीय, ठीक है, उनको वहां का भारत रत्न मिला हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और उन्होंने उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो ये रहा है कि 1947 में जब वहां पे डच जो वहां रूल कर रहे थे वो उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई को दबा रहे थे, तो ये फ्लाई करके वहां पे गए फ्लाइट से, और खुद फ्लाई करके गए, और वहाँ बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में वहां से एक ऐसा नॉर्मल एयर स्ट्रिप भी नहीं था, इम्प्रोवाइज एयर स्ट्रिप पे लैंड किया, फ्यूल व्यूल किसी तरह इकट्ठा करके, और वहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट रेबल्स को लेके, जैसे सुल्तान शाहरार जो वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, सुकार्नो, सबको उन्होंने बचाया। किसकी बात हो रही है? यार, I have two guesses. I'll take a very weird guess. JRD Tata. Not JRD Tata. विश्वास? मैं भी ऐसे कुछ सोच रहा था कि कितने लोगों को उस टाइम प्लेन चलाना आता होगा। पास। Passing to Zakir. सुभाष चंद्र बोस. No, not सुभाष चंद्र बोस. सनी? ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है। क्या? क्योंकि ना इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं वाइल्ड गेस भी नहीं मार पाऊंगा, लेकिन मैं मुआफी चाहूंगा, पास। ओके, विल गिव अ हिंट एंड गो अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम विशाल। तो बेसिकली एक इंडियन पॉलिटिशियन की बात हो रही है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ एक रीजनल पार्टी भी है जो इनके नाम पे है, इतने इंपॉर्टेंट है वो स्टेट के लिए, और स्टेट की जो करंट गवर्नमेंट है वो भी इन्हीं के नाम पे उस पार्टी का नाम है जो अभी करंट गवर्नमेंट वहां चला रही है। विद दैट हिंट विल टेक वन मोर राउंड। सर, नाउ वी नो। स्टार्टिंग विद विशाल। पास। पासिंग टू विश्वास। तो जिसके नाम पे पार्टी है वही चला रहा था फ्लाइट, या उसका बेटा चला रहा था फ्लाइट? वही चला रहे थे। बीजू पटनायक। बीजू पटनायक इज करेक्ट। 5 points to विश्वास। Oh man. Biju Janata Dal, named after him, one of the legends in Indonesian history, apart from Indian history, of course. बीजू पटनायक चैंपियन आदमी था भाई साहब, बहुत चैंपियन, फेमस पायलट। और बहुत सारी बढ़िया कहानी है इनकी। बीजू पटनायक is correct. 5 points to Vishwas. Cool. Okay, that brings us to the end of the first half. Quick check at scores. Sunny is after Bapu Nadkarni, Bhopal gas tragedy, Theo Broma, and one more. And Ajmal Kasab is on 35. Vishal after Amritsar is on 10. Vishwas 3 for airports named after women, and 5 for Biju Patnaik, he's on 8. Zakir 7 points on airports named after women, 7. Okay, cool. 50% of the quiz is still left. Sunny is on a healthy lead right now, but 50% is still left, so we never know. And 2 people qualify, so we never know. Okay. Now the order will be Zakir, Vishwas, Vishal, Sunny. Okay, Zakir, Vishwas, Vishal, Sunny. Let's start. Next question is to Zakir. मैं एक वर्ड का आंसर चाहता हूँ. Okay, this term means the circle, or more precisely the spiritual core, congregation or league, can be used to mean both a physical institution or a group of them which share a common lineage or are under a single leadership, such as the school of monastic thought or the school of martial arts. Unlike the Gurukul, in which students live and study at the home of a guru, members of an dash although train under a guru, but they do not live a domestic or homely life. Essentially, हम एक वर्ड का आंसर ढूंढ रहे हैं जो कि एक फिजिकल चीज को भी रेफर कर सकते हैं, स्पिरिचुअल चीज को भी रेफर कर सकते हैं, कॉन्ग्रेगेशन एज इन ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, और
कई बार ये इस ग्रुप के लोग कई बार सेम लिनिएज के होते हैं या फिर कई बार सिंगल लीडर के अंदर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ मोनास्टिक थॉट हो गया या स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स हो गया. ये सब हिंट्स हैं उस वर्ड के लिए. गुरुकुल और इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये कि गुरुकुल में लोग वहीं पे रहते पढ़ते हैं गुरु के साथ, बट इसमें ऐसा जरूरी नहीं है. एक वर्ड का एक आंसर ढूंढ रहे हैं. ये सारे हिंट्स आप दोबारा पढ़ लें और वो वर्ड बताएं किस वर्ड की बात हो रही है. जोक आंसर दे देता हूँ पहले तो, ताकि हाँ. वो दिमाग में से निकले तो फिर आगे बात बढ़े. हाँ. इज इट ऑनलाइन क्लासेस? क्योंकि स्टूडेंट साथ में तो रहते हैं नहीं, ठीक है. कहीं से भी इट्स अ ग्रुप ऑफ सर्कल जिसके अंदर श्वेता, माइक इज ऑन श्वेता. हाँ. ड्रीम 11. सर्कल 11. सर कल बताऊंगा. माइनस करो भाई. हाँ, मैंने पास कर दिया सर, अगर आप मेरा वेट कर रहे हो तो. ओ हाँ, ओके, सॉरी विश्वास. सिर्फ पहली लाइन के हिसाब से चक्र है, चक्रा, उसके बाकी किसी कुछ नहीं पता मुझे क्या है. ओके विशाल. चक्कर मैं बोलने वाला था. एक सेकेंड. सिर्फ वो कोर सर्कल वो सब. लोग को क्या लग रहा है कि मैं चक्कर नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, पास किया है. तो बोल दो. काहे बोले, तुम बोलो, हम क्यों बोले. योग. योग. नॉट योग. सन्नी. मतलब बेसिकली पाठशाला का उल्टा ऐसा कुछ है ना. तो मस्ती की पाठशाला होगा. मधुशाला. गुरुकुल की पाठशाला होती है ना. अरे आप तो बोलो यार सन्नी भाई, आपको जो पता है थोड़ी देर में याद आ ही जाएगा, वरना आपको. आप जैसे फॉर्म में जो बोले वही सही निकल जाएगा, आप बोल दो. हाँ. सर्कल ऑफ स्पिरिचुअल कोर. कल्ट भी नहीं बोल सकते. नहीं पता. पास. कल्ट तो नहीं है. आई एम जस्ट वेरी. नहीं पास. ओके ठीक है, एक और राउंड लेते हैं 5 पॉइंट्स का बना के. एक वर्ड का हिंट देता हूँ. हिंट इज रेसलिंग. ओके. रेसलिंग से इस तरफ जा सकता है. वन वे टू गो अबाउट इट. हिंदी वर्ड है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया. स्टार्टिंग विद जाकिर. हाँ बोलिए. अखाड़ा. अखाड़ा इज करेक्ट. अखाड़ा. अरे अखाड़ा इज बोथ फिजिकल एंड आल्सो अ कांग्रेगेशन. आप जाके देख भी सकते हैं, या इस तरह के अखाड़े भी होते हैं. निर्मोही अखाड़ा, बहुत सारे अखाड़ा हैं जो कुंभ मेला वगैरह में दिखते हैं. बहुत से अखाड़े से लोग आते हैं. 5 पॉइंट टू 5 पॉइंट्स टू जाकिर. अखाड़ा इज करेक्ट. नेक्स्ट डायरेक्ट टू विश्वास. Vishwas, following is a list of items that England received from Portugal as dowry when Charles II married Catherine of Braganza. 500,000 pounds, trading privileges in Brazil and East Indies, port city of Tangier in Morocco, and X. ठीक है, ये first half है. Second half, it is also believed that when she relocated to England, she brought large quantities of wine in her personal belongings. At that time, it was consumed there only as a medicine, supposedly invigorating the body and keeping the spleen free of obstruction. And she is believed to have popularized its use. मुझे दो चीजें चाहिए, X और Y. मैं रिपीट करता हूँ. जब चार्ल्स II से कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की शादी हुई तो दहेज के रूप में बहुत सी चीजें दी गई, जो कि इंग्लैंड को पोर्चुगल से मिली. पहली थी 500,000 पाउंड. दूसरा ब्राजील और ईस्ट इंडीज में ट्रेडिंग करने की इजाजत. मोरक्को का एक शहर है टैंजियर, वो. और एक चीज मैंने छुपा दी है जो सबसे फेमस चीज दी उनको. सेकंड ये है कि जब कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा इंग्लैंड पहुंची तो वहां पे उन्होंने एक चीज का बहुत एक कोई पर्टिकुलर चीज बहुत सारे अपने साथ लेके गई थी. वो उनके पहुंचने तक ये चीज सिर्फ एक मेडिसिन की तरह मोस्टली इंग्लैंड में यूज होती थी, बट इन्होंने उसका जो यूज करना शुरू किया उसके बाद से ये चीज काफी पॉपुलर हो गई और आज भी है. तो ये दो चीजें मुझे चाहिए. क्या क्या बात कर रहे हैं. क्या वाई विस्की. विस्की. ओके. एक्स. एक्स विस्की किससे होती है. अल्कोहल. अल्कोहल नहीं. विशाल.
दो गेस है बट एक एक्स गोवा, And why? वाई टी चाय. Yeah, absolutely correct. Y is correct. T is correct. Tea till then in England was a medicinal kind of a thing, but Catherine of Braganza when they started having chai and it became a popular thing. Okay, so 5 points to Vishal for T. X is still open, so I'm going to Sunny only for X. मैन फिर मेरे को एक्स भी पता है. पोर्टुगल से मिला है. गोवा तो नहीं है. और क्या है? Port of Tangier in Morocco, Brazil. Pass. Okay, Zakir. ये यार मैं दो चीजों में बहुत कंफ्यूज हूँ अभी. तो एक गोल देख मुझे बता दे. हाँ एक गोल देख मुझे बता दे. सर मेरा ये पूछना था कि जो Y है वो डायरेक्टली X से कनेक्टेड है. Not necessarily. नहीं. ठीक है. ट्रेडिंग प्रिविलेजेस इन ब्राजील, ईस्ट इंडिया, पोर्ट ऑफ, और ये विशाल ने क्या क्या जवाब दिए थे एक्स और वाई के? विशाल ने गोवा बोला था. गोवा और चाय, तो चाय सही है. गोवा गोवा. correct. पोर्तुगीज, ओल्ड, दार्जिलिंग. No, not Darjeeling. Okay, we'll take one more round for X, starting with Vishnu. So, city is good track. उस पे एक round. What? City is a good track to have. City. We'll start with Vishnu. पहले मुंबई. Mumbai is correct. 7 islands of Mumbai. यार पहले तो मैंने यही सोचा था यार. अरे. So basically जब उन्होंने पोर्टुगल ने बहुत कुछ दिया था उनको, उसमें से 7 आइलैंड ऑफ बॉम्बे यूज नहीं हो रहा था, साइड में पड़ा हुआ था, तो उन्होंने दे दिया था कि तुम रख लो, एंड देन ब्रिटिश केम एंड मेड इट इनटू व्हाट इट इज. गोवा नहीं हो सकता विशाल, क्योंकि गोवा पोर्टुगीज के साथ 1960s तक था. तो हाँ यार, अरे मैं दो में मैंने फिर गोवा ले लिया. ओके, 2.5 to 10 प्लस पॉइंट्स हो गए. 2.5 to Vishwas for Bombay and 5 to Vishal for T. Okay, which means next direct will be to Sunny bhai, because Vishal got more points on this, so next direct will be to Sunny. The dash dash, I am looking at a 2-word answer. Dash dash are a voluminous body of literature native to India concerning the previous births of Gautam Buddha in both human and animal form. The future Buddha may appear as a king, an outcast, a god, an elephant, but in whatever form, he exhibits some virtue that the tale thereby inculcates. Often they include an extensive cast of characters who interact and get into various kind of trouble, whereupon the Buddha character intervenes to solve all the problems and bring about a happy ending. The term may also refer to a traditional commentary on this book. They are dated between 300 BC and 400 AD. So basically 300 BC से 400 AD तक बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं जिनको हम 2 वर्ड टर्म से जानते हैं. ये इंडिया का नेटिव है और इनकी स्टोरीज जो होती हैं उसमें सब में गौतम बुद्ध का किसी न किसी रूप में होते हैं. वो रूप एक राजा का भी हो सकता है, हाथी, जानवर, भगवान, कुछ भी हो सकता है, बट हर स्टोरी में जो पैटर्न है वो सेम रहता है कि कोई ना कोई उनकी खास बात, उनकी कोई क्वालिटी हम दिखाते हैं. ठीक है, सब में बहुत से कैरेक्टर होते हैं, कुछ ना कुछ ट्रबल होता है, फिर जो कैरेक्टर भगवान बुद्ध का हो रहा होता है वो आते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हो जाती है. ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 2 वर्ड का आंसर है डैश डैश. मुझे सिर्फ फर्स्ट वर्ड भी बोलेंगे तो चलेगा, सेकेंड वर्ड तो जेनरिक. The voluminous body book है क्या ये? Is it a book? कोई book है ये?
हाँ हाँ बॉडी ऑफ लिटरेचर है तो मतलब हाँ बुक से रिलेटेड ही है। हाँ अ, गौतम बुद्धा की स्टोरीज ऑफ गौतम बुद्धा, मतलब 2 वर्ड है ना? हाँ हाँ फर्स्ट वर्ड मुझे मेनली चाहिए, सेकंड वर्ड तो जेनरिक है तो चलेगा। मिरेकल्स ऑफ बुद्धा ऐसा कुछ। नहीं, पासिंग टू जाकिर। पास। पासिंग टू विश्वास। पास नहीं पता यार। विशाल। Jataka Tales. यस परफेक्ट आंसर, 10 पॉइंट्स। जातका टेल्स और जताका टेल्स, जातका टेल्स written most sacred text in Buddhism and written in Pali back in the day. Cool. 10 points to Vishal Dayama. Next direct to Sunny bhai. बस आपको ये ब्लैंक भरना है, हम किसकी बात कर रहे हैं। 2002 45 kg ब्लैंक जैंग सॉन्ग आई गोल्ड, 2005 46 kg डैश जोंग ऑक गोल्ड, 2006 46 kg कैटेगरी डैश स्टेलुता दूता गोल्ड। ऐसे कर करके 6 ब्लैंक्स हैं, 6 अलग अलग सालों के, कैटेगरी सब की लिखी हुई है। प्लेयर 2 हम्म प्लेयर 1 सेम है सब में। तो किसकी बात कर रहे हैं हम। 2002 2005 2006 2008 2010 2018। who are you talking about? नहीं पता। पासिंग हम्म। passes to Zakir. Sir, this is only one player who has played from 2002 to 2018. अरे अपनी शिट शिट याद आ गया मुझे। शिट। हाँ Sir, Mary Kom. यस। Absolutely correct. It is अरे Mary. यार 10 points to Zakir. Mary Kom and her शिट 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 शिट। AIBA World Championship gold. So these were her 6 different years in which she won gold at different stages. Brilliant answer. It is Mary Kom. Okay. So next direct will be to Vishwas. Vishwas, there are 6 images on your screen right now. I want 2 things from you. One is connect these images and tell me the missing one. Okay. So basically 7 है इसमें, एक मैंने हटा दिया, 6 मैंने स्क्रीन पे रखा है। आपको बताना है ये 6 में क्या कॉमन है और मिसिंग वन कौन सा है। ये सारे नोट पे होते हैं और Okay. गांधी जी नहीं इसमें। नहीं, गांधी जी तो है ही है। ओके कनेक्ट। ओके मिसिंग वन कौन सा है। अ, यार पता नहीं यार, बहुत ही स्टूपिड लगेगा नहीं होगा तो। ये कोई मॉन्यूमेंट है क्या वो भी? वो नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, तो वो बुल कार्ट होता है जो बैलगाड़ी वो। नहीं। Okay, so I'm giving 6 points to Vishwas because beautiful connect. Connect is correct. These are all on the back of the new Mahatma Gandhi series of notes. Okay. एक 7th missing है, सिर्फ उसके लिए I'll go across all of you guys for 4 points. Giving 6 to Vishwas. Starting with Vishal. Somewhere in Hampi. हम्पी है, हम्पी नीचे का लेफ्ट कुछ। वाला हम्पी है। Going to Sunny. सर मेरे हिसाब से आधा तो दे दिया है विश्वास भाई ने। ताजमहल। नहीं, not ताजमहल। जाकिर। Sir, is it the national emblem जो 3 शेर वाला रहता है? नहीं नहीं। Okay. We'll give a clue and start with Vishwas again. Clue for all of you is that this thing which is in the back is not in India. Okay. इंडिया में नहीं है वो, इनफैक्ट किसी भी देश में नहीं है वो। दैट्स अ हिंट। सो क्या हो सकता है। खुशी। देश में नहीं है।
किसी भी देश में नहीं है। हाँ मतलब इंडिया में ही नहीं, किसी भी देश में नहीं है वो चीज, तो मतलब कहीं और है बेसिकली। सन 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 नहीं। विशाल। अरे किसी भी देश में, राम सेतु, मतलब किसी भी देश में नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम्म। बस। ओके जाकिर। इज इट लाइक अ मॉन्यूमेंट ओनली? नहीं नहीं, मतलब मॉन्यूमेंट होगा तो किसी देश में तो होगा। गांधी जी का चश्मा? नहीं। यार पर वो भी तो है। वो तो मैंने पहले बोला था, गांधी जी तुमके साथ चश्मा भी आया था। तेरे गांधी जी के चश्मा, क्या पता तेरे गांधी जी बिना चश्मे के आए हो तो, ठीक है। अलग आदमी है, अलग आइडेंटिटी हो सकती है, कभी चश्मा रख दिया तो। भूल भी सकते हैं, होता है ऐसा तो। पास सर पास। आप बता दो यार, आप मत थकाओ हमें। ओके दूसरा सवाल क्या पता अटेम्प्ट भी कर going लें। to Kalyan is correct. Cool. I'm giving 6 to Vishwas for the currency connect. अभी एक कम। Okay. Next direct will be to Vishal. Vishal, I'm talking about something which was introduced in the 19th century by Mahadev Govind Ranade, a social reformer. Later, it was used by many leaders like Lokmanya Tilak, J. Karandikar, D.D. Satye, Vitthal Rao Gade. The thing became more popular. किसी thing की बात कर रहे हैं. The thing became more popular in 1973 after the Marathi play Ghashiram Kotwal. To preserve the identity, there were demands from locals to grant it a geographical indication status. Their demand was fulfilled, and the theme became an intellectual property on 4 September 2009. What is this that is considered a symbol of pride and honor? तो शुरू से देखते हैं हिंट्स क्या क्या। हम एक चीज की बात कर रहे हैं जो कि 19th सेंचुरी में महादेव गोविंद रानाडे, जो बहुत ही महान सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने शुरू इंट्रोड्यूस किया था ये। उसके बाद तिलक से लेकर बहुत से फेमस लीडर्स ने इसको यूज किया। 1973 का एक मराठी प्ले है घाशीराम कोतवाल, उसके बाद ये चीज और ज्यादा पॉपुलर हो गई। अब ये एक पर्टिकुलर जगह के लिए या रीजन के लिए, जो आप देख सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की डिमांड हुई। जीआई स्टेटस अगर आप लोगों को पता है तो, जैसे तिरुपति लड्डू, बनारसी साड़ी, ये सब ऐसी चीजें होती हैं जो रीजन डिमांड करता है कि हमको ऐसा मिलना चाहिए, और जो 2009 में मिल भी गया। हम कौन सी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो बहुत प्राइड और ऑनर का प्रतीक माना जाता है? Is it the pagadi? Okay, can you also add a geographical indication like Tirupati, Banaras? Pune की Perfect pagadi. answer. Puneri Pagadi is correct. Perfect. One of the best answers of the day. Great deduction. Puneri Pagadi is correct. 10 points to Vishal. Beautifully done. Puneri Pagadi is correct. Were famously बात है। बाल गंगाधर तिलक पहनते थे, राणा डे पहनते थे, Hmm. एंड ऑफ कोर्स पुणे में और महाराष्ट्र में इन जनरल काफी इज्जत है इसकी। Puneri Pagadi is correct. Okay, last few questions going to Sunny. The name of this sports training and consulting company has a subtle reference to an extremely rare achievement of its founder. The company, however, says that the name is an abbreviation of their motto, which is to ensure victory. Who is the founder and what is the achievement we are talking about? Essentially, कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कंसल्टिंग करती है। जो नाम है उस कंपनी का, वो उसके फाउंडर के एक रेयर अचीवमेंट के लिए हिंट है। बट वो कंपनी ऐसा कहती है कि ऐसा नहीं है, वो कंपनी का नाम इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म फॉर टू इंश्योर विक्ट्री। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कंपनी का फाउंडर कौन है और कौन सा ऐसा एक्सट्रीमली रेयर अचीवमेंट की बात कर रहे हैं? Cornerstone, Bunty Sachdeva. ग्रेट आंसर। यार ये कंपनी किसी क्रिकेटर की है, इतना मुझे पता है, लेकिन अब वो कौन वाले हैं क्रिकेटर ये नहीं याद आ रहा जो इरफान पठान। नॉट इरफान पठान। पासिंग टू जाकिर। अनिल कुंबले।
And what is the achievement? अरे और क्या, अब अनिल कुंबले बोला इतने क्या अचीवमेंट है? 10 और विकेट यार, लिया 10 wickets. राजस्थान के अगेंस्ट यार सर। Beautiful answer. 10 wick basically stands for 10 wickets. हाँ। Great answer. Kumble and his 10 wicket haul. 10 ये ट्रिविया है, ये मैच है लास्ट के जो 4 विकेट हैं, हमारे घर पे लाइट चली गई थी तो हमने रेडियो पे सुने, तो बहुत ही मतलब एविडेंटली मेरे को याद है जब ये हो रहा था कि बाकी बॉलर जो है वाइड फेंक रहे हैं, out फेंक रहे हैं. है ना, वो कमेंट्री में बिल्डअप हो रहा है कि 7 विकेट के बाद 10 विकेट हो गई, तो वो बहुत ही मतलब पता नहीं अब तो कितने लोगों को नहीं याद, मालूम नहीं होगा, पर टेस्ट मैच में उस टाइम पे इतना एक्साइटमेंट आता नहीं था, Correct. अब तो आ जाता है। Wow, great answer. Zakir gets 10 points for Anil Kumble. Now I go to Vishwas for the last question. Okay. Vishwas, talking about a historic victory procession, there were dhols along with 151 Balak cart procession right from the outskirts of Goleshwar to the Mahadev temple, which is normally a 15-minute walk, recalled Sampat Rao Jadhav, his cousin, who was his, आपको बताना है finally, his या फिर achievement बतानी, who was with Dash when he left for Helsinki to compete in the bantamweight category. What historic victory procession has been talked about here in this question? Put funda. Essentially, संपत राव जाधव जी एक दिन के बारे में बात कर रहे हैं, और संपत राव जाधव वही है जो अपने कजन के साथ हेलसिंकी गए थे जब कजन बैंटम वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, और बोल रहे हैं कि उस दिन ढोल थे, 151 बुलक कार्ट्स थे, गोलेश्वर से महादेव जो 15 मिनट का वॉक होता है उसमें हमको बहुत टाइम लगा। तो ये किस फेमस विक्ट्री प्रोसेशन की बात हो रही है? क्या इवेंट है? क्या ऐसा क्या कर लिया साथ वाले ने कि इतनी बड़ी बात हो गई इंडियन हिस्ट्री के लिए? कोई पहलवान पहली बार ओलंपिक में ऐसे सेलेक्ट हुआ था, खेलने आ रहा था। गुड ट्रैक, कैन यू इम्प्रूव योर आंसर? नहीं पता, कुछ और इतना ही कि कोई ओलंपिक के लिए जा रहा है, बॉक्सिंग या कुश्ती, बॉक्सिंग में भी। ओके, पासिंग टू विशाल। Is this Sushil Kumar? नो। सनी? नो आइडिया। जाकिर? सर ये बैंटम वेट क्या होता है? बैंटम वेट एक कैटेगरी है एक गेम में, एक गेम में कैटेगरी है बैंटम। सो देयर वर ढोल्स, 151 ढोल थे, और जो है बैलगाड़ी वगैरह थी। गोलेश्वर से महादेव टेम्पल, which is normally 15-minute walk. Recall संपत राव जाधव, जो कि his cousin who was with Dash when he left for Helsinki to compete in the bantamweight category. The historical event has taken place. Question. एक का जोक आंसर है केदार जाधव, और जो मेरा आंसर है वो गामा पहलवान, जस्ट ए वाइल्ड गेस। नो। सो ओके, एक राउंड लेते हैं। विश्वास मतन वेरी गुड ट्रैक, आई डोंट नो व्हाई वी लेफ्ट दैट ट्रैक फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, विक्ट्री की बात कर रहे हैं विश्वास, तो जस्ट विक्ट्री इज अ बिग हिंट and it is a very very important, extremely important event in the history of Indian sports. तो उस हिसाब से सोचेंगे कि इतना क्या बड़ी बात कर ली इस बंदे ने, तो इसका अचीवमेंट बस बोलेंगे। आपको मैं पार्ट पॉइंट्स ओलंपिक्स के तो दे रहा हूँ ऑलरेडी, थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड आंसर के लिए एक राउंड लेते हैं। नहीं यार, नहीं पता। ओके, विशाल? यार अब मैं विजेंद्र सिंह बोलूंगा। सनी? सर विक्ट्री वाला जो था, आपने बहुत अच्छा क्लू दिया, मेरे लिए नहीं था लेकिन पास। जाकिर? मैं दूसरों को हेल्प कर देता हूँ। देखो, बात तो महाराष्ट्र बंदी की हो रही है, तो विजेंद्र सिंह वगैरह नहीं चलेंगे आंसर में, ठीक है? आपका कोई नहीं बताएगा अगर उसका कजिन ही जाधव है हाँ, विजेंद्र सिंह तो होने से रहा गाइस, ठीक है?
केदार जाधव अच्छा था वैसे। केदार जाधव वाज वेरी क्लोज, पता नहीं क्यों सबने गुड ट्रैक नहीं बोला, पर भुवनेश्वर जो माता टेम्पल पे। और ये हेलेंस्की में कुछ सर पास थी, तो बता दीजिए आप। ओके, आई एम क्लोजिंग दिस। बेसिकली ओलंपिक हो गया, तो उसमें विक्ट्री में बस मेडल ऐड करना था। Anyway, Olympic medal. won a medal in 1952 Helsinki Olympic. He is the first Indian to win an Olympic medal. That's it. सर वो तो हमें पता था, Oh. हम नाम सोच रहे थे सर इतनी देर से। Sorry. First Indian. वो ये इतना डिसअपॉइंट है कुमार भाई, यार जाओ यार आप लोग यार। बहुत डिसअपॉइंट थे भाई, बीच में ही बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे, वो ऐसे कर दिया दो बार। तो अरे नहीं, मतलब बलक कार्ड्स वगैरह हेल्सिंकी में हम लोग मतलब पुराने ही है वो, तो हम समझ अरे गए। उसमें ये क्या लिखा हुआ था फिर, his cousin, he was with कजन his जादव cousin. है, तो फिर तुम कहाँ इधर। जाकिर वाज राइट कि मतलब ऑलमोस्ट केदार जाधव, केडी लिखा हुआ है। आई नो। मैं जो बोलना चाहिए था केदू बोलता तो मैं केदू जादू। Yadav won a bronze in wrestling, who the first Indian to win an Olympic medal, first individual Indian. उसके पहले हमने सिर्फ हॉकी में मेडल जीता था, और पहली बार किसी ने इंडिया के लिए वो इंडिविजुअल गोल्ड जीता, केडी जादव थे। मैं I'll give part points to Vishwas सिर्फ यही मिले मुझे। for Olympic at least. Okay, so I'll give 3 points to Vishwas. Also, I mean Zakir was like, अगर इनको थोड़े भी पॉइंट इसमें मिल जाते तो गेम चेंज हो जाता। Let's look at the final score now. Sunny had 35 in the first round, didn't score anything in the second half, so Sunny ends on 35. सनी भाई ने पहले तक फोड़ दिया था। शुरू में पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए। Vishal had 10 points and he got Bombay and T वाले में T correct, and then he got Jataka Tales and also Puneri Pagdi, so 25 more and 10 from first half. Vishal also ends on 35. Woo! Vishwas had 8 points and then he got 2.5 for Something. he got 2.5 for Bombay, I think, yeah, and 6 points for back of currency notes, 6 points for back of currency notes, and 3 points for KD Jadhav, first medal in Olympics. So he gets 19.5 total. 20 भी आधा ठीक लगा। नाक कटा दी तूने मेरी। Zakir had 7 but had a brilliant second half with Anil Kumble and Mary Kom. सारे क्रिकेट क्वेश्चन इधर चले गए। 20 आने तो इधर आ रहे हैं ना, वो क्या बापू नाट करनी। बताओ यार। 5 for Akhada also, so Zakir ends on 7 plus 25, which is 32. So he misses the same. कितना 32. तो सेकंड तो मैं ही आया ना अभी भी, ये लोग तो दोनों फर्स्ट आए। So यार Sunny, सही रहेगा, मैं थर्ड आ जाऊंगा फिर, एटलीस्ट फोर्थ नहीं आया। Sunny and Vishal, congratulations first of all to Sunny Hinduja for making a great debut, great performance, superb answer. Bapu Nadkarni, Ajmal Kasab and Theo Broma, भोपाल गैस कांड। Bhopal Gas Tragedy. ओए 10 नंबर आपके हैं सर। And Vishal Dayama also qualifies for the second round. So all the best to Vishal Dayama and Sunny Hinduja, and always great hosting Vishwas and Zakir. Zakir शायरी people are saying, करना है Zakir या रहने दे? कर देंगे भाई, हमें क्या है, हम तो करते हैं भाई। हम तो बेसिकली एक दो नए शेर हैं, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है ना। एक शेर है ऐसे ही, कहा है कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, कि इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या। बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या। और कहा है कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, एक बार लगाने दोगे क्या। What an end to the quiz. Beautiful. Always love references around Sindoor and etc. Thank you so much, Zakir, for that. Thank you again to Vishwas and Zakir for being a part of this. Always much gratitude to you guys, and all the best to Sunny and Vishal. Thank you. Panel.